मेरा काम भी आप लोगों की तरह 24 घंटे चौकन्ना रहने का है। अब जैसे भ्रष्टाचारी और बिचौलिए देश की व्यवस्था पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जरा भी नजर हटी या ढील दी तो मौके का लाभ उठाते हैं। जब देश का चौकीदार चौकन्ना रहेगा तो ऐसे लोगों पर लगाम लग जाती है। বুধবাৰে বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ 25 লাখ চকীদাৰৰ সৈতে কথা পাতে। বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজকে চকীদাৰ বুলি দাবী কৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সৈতে মোবাইল যোগে কথা পাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া মোদীৰ আন এক চমক। এইখিনি সময়তে চকীদাৰক ইছ্যু হিচাপে লৈছে বিজেপি। এই দৃশ্য মন কৰক, নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ উদ্যোগত স্থাপন হৈছে এনে এক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াত আছে চকীদাৰৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী, চকীদাৰৰ বাবে স্পৰ্টিং গেঞ্জি, চকীদাৰৰ বাবে টুপি, চকীদাৰৰ সকলো সামগ্ৰী। অৱশ্যে নাই চকীদাৰৰ বাবে লাঠি। 31 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ 500 স্থানত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে চকীদাৰৰ লগত কথা পাতিব। চকীদাৰে যাতে এনেধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চকীদাৰৰ পোছাক সাজু কৰি ৰাখিছে ব্যৱসায়ী মহলে। এতিয়া চকীদাৰ হৈ গ'ল দেশৰ নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আচ্ছে দিন আনে वाला है আদি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চৰকাৰ গঠন কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ ইছ্যু এতিয়া কেৱল চকীদাৰ। मैं भी चौकीदार हूँ। प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में एक मिशन बन गया है और इसकी इतनी डिमांड है अभी कि हमें ये लाना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी 31 मार्च को लाखों चौकीदारों के साथ जो है बात करने वाले हैं, तो इसलिए मार्केट में हम लेके आए हैं। क्या लगता है इससे लोग जुड़ेंगे भी? लोगों की भावना जुड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात है लोगों की भावना उनके साथ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। आगे এয়া কেনেধৰণৰ চকীদাৰ? বিজেপিৰ চকীদাৰ নীতিক বিৰোধীৰ সমালোচনা। চকীদাৰ নীতি হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈছে। बात सुनो, जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है कि चोर है? अब शिवराज सिंह चौहान भी इनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई। व्यापम में, ई टेंडरिंग में, कौन से घोटाले में शिवराज सिंह ने चोरी नहीं की? वो भी चौकीदार। अगर चोर ही चौकीदार अपना गले में तकमा चाल के चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? वही हालत मोदी जी की है। चौकीदार कैंपेन जो है वो इस देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम है। ये कौन सा चौकीदार है जिसके नाक के नीचे नीरव मोदी हजारों करोड़ लूट कर भाग जाता है, ललित मोदी हजारों करोड़ लूट कर व्यवस्था को चिढ़ाता है? ये कौन सा चौकीदार है जिसके राज में विजय माल्या और मेहुल चौकसी विदेशों में बैठकर अय्यासी करते हैं? ये कौन सा चौकीदार है जिसकी पार्टी के लोग 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के समर्थन में रैली करते हैं? ये कौन सा चौकीदार है जिसके मंत्रिमंडल में ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने गाय के नाम पर इंसान का कत्ल करने वाले लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया? ये कौन सा चौकीदार है जिसके राज में करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और किसान को अपने फसल का दाम पाने के लिए पेशाब पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है? मुझे लगता है ये नफरत के ठेकेदार हैं। इस देश को नफरत की बुनियाद पर ये बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का देश है, भाईचारे का देश है, यहाँ के व्यापारियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने में ये सरकार विफल रही है। आज नोटबंदी और जीएसटी के कारण देश का व्यापारी बुरी तरीके से त्रस्त है। आने वाले चुनाव में सब मिलकर इनको जवाब दें। সমগ্ৰ দেশজুৰি চকীদাৰক লৈ এতিয়া আলোচনা চলি থকা অৱস্থাত এক নতুন বিতৰ্কৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বুধবাৰে পুৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন ব্লগ। টুইটাৰ যোগে মোদীয়ে লিখিলে বংশবাদৰ কথা। বংশবাদে দেশ শেষ কৰিলে। বংশবাদৰ বিৰুদ্ধে ভোটাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। গান্ধী পৰিয়ালক আক্ৰমণ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন ব্লগ লিখি বংশবাদক আক্ৰমণ কৰিলে। আচলতে গান্ধী পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে।
গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবলৈ পৰোক্ষভাৱে আহ্বান জনালে মোদীয়ে। মোদীয়ে যেতিয়া ব্লগ লিখিছিল সেই সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী। এই পাহাৰটোলৈ মন কৰক, পাহাৰৰ ওপৰত আছে এটা দুৰ্গ, এই দুৰ্গৰ ভিতৰত আছে এটা অতিথিশালা। সোণাৰ কুইলা নামৰ এই অতিথিশালাত বাহৰ পাতি আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। বুধবাৰে পুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰিয়ংকা গান্ধী এই ঘৰটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিলে, আপুনি কি কয়? প্ৰিয়ংকাক সোধা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱা বংশবাদৰ প্ৰসংগ। লগে লগে উত্তৰ দিলে প্ৰিয়ংকাই। The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. বংশবাদ কেৱল কংগ্ৰেছত নেকি? বংশবাদ নাই নেকি বিজেপিত? বিজেপি নেতাৰ পুত্ৰ কন্যা পুনৰ বিজেপি নেতা কিয়? प्रश्न কৰিলে आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भाजपा में नहीं है क्या? तो वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह सांसद कैसे हो जाता है? रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह कैसे सांसद हो जाता है? कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह कैसे सांसद हो जाता है? प्रेम कुमार धूमिल का बेटा अनुराग ठाकुर क्या है आज की तारीख में? क्या है राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह? क्या है? तो ये वंशवाद पे कैसे बोल सकते हैं? हर राज्य में पंकजा मुंडे को आप देख लीजिए, महाजन की बेटी को आप देख लीजिए, सब तो इनके यहाँ उसी चंद परिवारों के लोग ही तो इनकी पार्टी में राज कर रहे हैं। कहां से ये वंशवाद पे बोलने के काबिल हैं? अगर वंशवाद पे बोलना है प्रधानमंत्री जी को तो पहले इन सब बेटे बेटियों का टिकट काट के वो इस चुनाव में दिखाएं। বংশবাদক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন বিতৰ্ক চলি থকা পিছত এইবাৰ বিতৰ্কত ভাগ ললে তাৰিক আনোৱাৰে। মোদীৰ বংশ নাই, সেয়েহে মোদীৰ সন্তান নাই, গতিকে মোদীৰ সন্তানে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। तारिक अनवरर वितर्कित मंतव्य। नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंश ही ना हो वो कैसे ये बात कह सकता है? ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ वंश को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और हर प्रोफेशन में है। कोई ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें अपने वंश को लोग नहीं बढ़ाते हों, आगे नहीं लाते हों। तो राजनीति में भी आते हैं और जगह भी आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि वो कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मोदी जी को चूँकि आगे अपना वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। চকীদাৰৰ পিছত এবাৰ বংশবাদক লৈ আলোচনা। যোৱা ৫টা বছৰ চৰকাৰে কি কৰিলে তাৰ ওপৰত আলোচনা নহয়। ৰাম মন্দিৰো পাহৰি গ'লে এইখন চৰকাৰে। ৰাম মন্দিৰো এটা প্ৰধান ইছ্যু নহয়, এটা প্ৰধান ইছ্যু চকীদাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।